السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سمینہ رانا. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن. وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس. مالی سال 2020-2019 میں معاشی صورتحال اور آئندہ مالی سال کا جائزہ. حکومت نے اقتصادی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے. متوسط طبقے کو لاک ڈاؤن کے منفی اثرات سے بچانے، نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی، زراعت اور صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان. قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں زراعت، صنعت اور خدمات کی شرح نمو، جی ڈی پی گروتھ کے ہدف اور سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 کی منظوری. سالانہ ترقیاتی منصوبوں میں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان سمیت کم ترقی یافتہ علاقوں کو اہمیت دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان. پاکستان میں کرونا کیسز کا گراف مزید بلند. ایک ہی دن میں ریکارڈ 5,834 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق. متاثرہ افراد کی تعداد 1,19,536 ہو گئی. وبا سے مزید 101 افراد انتقال کر گئے. جہاں بک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,356 ہو گئی. 38,391 صحت یاب. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے کو چیئرمین بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان میں انسداد پولیو کی صورتحال، کورونا سے متعلق آگاہی کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر تبادلہ خیال. کورونا کے باوجود پاک فوج حکومت کی انسداد پولیو مہم کی تیاریوں میں شامل ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. مالی سال 2019-2020 کی اقتصادی رپورٹ آج جاری کی جائے گی. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ رواں مالی سال کے دوران معاشی اشاریوں اور معیشت کے اہم شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کریں گے. ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری. سماجی تحفظ اور صحت کی خدمات میں بہتری سمیت ترقی کی رفتار میں تیزی اور روزگار میں اضافے کے لیے معاونت. کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی ہر ممکن مدد کے لیے پرعزم ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کا اعلامیہ. وزیر اعظم نے شوگر کمیشن کی سفارشات کی منظوری دے دی. ملوث افراد کے خلاف فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے. چیئرمین نیب کو چینی اسکینڈل سے متعلق پہلا ریفرنس بھیج دیا گیا ہے. چینی اسکینڈل کے حوالے سے نیب کارروائی کرے گا. معاون خصوصی شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس. کراچی طیارہ حادثہ کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات عبوری رپورٹ 22 جون کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی. وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا سینٹ میں اظہار خیال. میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ. 2 سیکیورٹی اہلکار شہید، 2 زخمی. شہداء میں صوبیدار عزیز اور لانس نائک مشتاق شامل. حملہ سیکیورٹی دستوں کے معمول کے گشت کے دوران کیا گیا. ISPR. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں مزید 5 کشمیری نوجوان شہید. اتوار سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 14 ہو گئی. علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل. ضلع شوپیاں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل. دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ. 74,53,000 سے زیادہ متاثر.
4,19,000 افراد جان کی بازی ہار گئے، 37,50,000 صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,15,000 تک جا پہنچی۔ بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,87,000 سے تجاوز کر گئی۔ 8,000 سے زیادہ ہلاک۔ لاطینی امریکی ملک برازیل میں ہلاکتوں کی تعداد 40,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ برازیل کے بعد میکسیکو میں بھی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہلاک افراد کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، 1,123 ٹیموں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,26,000 ہیکٹر رقبے کا سروے، 10,000 ہیکٹر رقبے پر ٹڈی دل کو تلف کرنے والی ادویات کا اسپرے۔ اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے پہلے آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ میں 3 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ ٹورنامنٹ 15 جون کو شروع ہوگا، جو 7 روز تک جاری رہے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ بریک کے بعد خبر نامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل نے مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ اور سالانہ شرح نمو کے ہدف کی منظوری دے دی ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس سے خطاب وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صحت اور زراعت سمیت ان شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں جن سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں۔ ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے متعلق وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی یقینی بنائی جائے۔ جاری منصوبوں پر پیش رفت کے جائزے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے عوام کی تجاویز اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر عوامی رائے حاصل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ PSDP منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے قومی اقتصادی کونسل کے 2 سالہ اجلاس کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں رواں سال کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے جائزے کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی کہ حکومتی اقدامات نے ترقیاتی اسکیموں کے بروقت نفاذ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 827 ارب روپے لاگت کے 149 منصوبے 30 جون تک مکمل ہو جائیں گے۔ اجلاس میں 2020-21 کے لیے قومی ترقیاتی منصوبوں اور وفاقی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی گئی۔ رواں سال کے سالانہ ترقیاتی منصوبے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت کم ترقی یافتہ علاقوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے وزیر اعظم کی صدارت میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کے تحت ایک تنخواہ کے برابر اضافے کی ادائیگی کے لیے 48 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ یہ رقم شعبہ صحت کے 10 اداروں کے 3,432 ملازمین کو ادا کی جائے گی۔ اجلاس میں یوریا کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کمیٹی کو گندم کی خریداری پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاسکو اور صوبوں نے 65 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کر کے 82,50,000 ٹن کے مقررہ ہدف کا 80% حاصل کیا ہے۔ اجلاس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کی بنیادی شرط میں تبدیلی کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے بجلی سے چلنے والی 2 اور 3 پہیوں اور کمرشل گاڑیوں کی تیاری کے حوالے سے پالیسی اور ورلڈ فوڈ پروگرام کو 10,000 میٹرک ٹن گندم کی فراہمی کی منظوری بھی دی۔
रवा माली साल 2019-2020 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख हुकूमत की इक्तिसादी टीम के हमरा रवा माली साल के दौरान माशी इशारियों और मईशत के अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत की खदमात में बेहतरी, तरक्की की रफ्तार में तेजी और रोजगार में इजाफे के लिए $50 करोड़ के कर्जे की मंजूरी दी है। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिया में बैंक के सदर ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मंजूर करदा कर्ज से हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम के लिए दरकार माली वसाइल की दस्तियाबी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुआविन खुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म को वज़ारत दाखिला और इसके मुख्तलिफ महकमों की गुज़श्ता 20 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने बताया कि गुज़श्ता 20 माह में नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान का अहया किया गया। इस हवाले से माहिरीन पर मुश्तमिल 14 कमेटी तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ उमूर से मुतल्लिक एक माह में अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क में सरमायाकारी और सयाहत के फ़रोग़ के लिए 175 मुल्कों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मुतारिफ कराया गया, जिससे पाकिस्तानी वीज़े का हुसूल निहायत आसान हो गया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि दहशत गर्दों के माली वसाइल की रोकथाम के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब की गई। स्मगलिंग के नासूर से निमटने के लिए स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से जामे पॉलिसी और मुफस्सल हिकमत अमली मुरतब करके इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस्लामाबाद में कब्जा माफिया से तकरीबन 100 अरब रुपए मालियत की 15,000 कनाल अराजी वागजार कराने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ 70 ऑपरेशन किए गए। वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 साल में दी जाने वाली 29 अरब रुपए की सब्सिडी का जायजा लिया गया। मुआविन खुसूसी ने कहा कि चेयरमैन नैब को चीनी स्कैंडल से मुतालिक पहला रेफरेंस भेज दिया गया है। इस हवाले से नैब कार्रवाई करेगा। 29 अरब रुपए की सब्सिडी में एक बेसिक फ्लॉ जो सबके अंदर था कि कोई जुडिशियस फैसला नहीं था। सब्सिडी जिस बुनियाद के ऊपर दी गई वो बुनियाद ही गलत थी। जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है ये हमने भेज दिया है चेयरमैन नैब को। हमने अपने दौर की भी दी हुई महज 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी उसका भी एहतसाब किया है। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज फेडरल मिनिस्टर हैं अहमद अजहर साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जा रही है। शुगर प्राइस को मार्केट में जो सारिफ को मिल रही है उसको नीचे लेके आएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। DG ISPR के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो की सूरत हाल और कोरोना से मुतल्लिक आगाही की फ्राहमी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के हवाले से मौसर किरदार अदा कर रही है। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज की यह कौमी जिम्मेदारी है। सेहत आमा के हवाले से पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हेल्थ केयर वर्कर इंसदाद पोलियो मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इंसदाद पोलियो मुहिम के वर्कर्स को कोरोना वबा में भी पेश हैं। कोरोना के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। आर्मी चीफ ने बीमारियों के खात्मे के लिए बिल गेट्स और फाउंडेशन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 5,834 केसेस का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और 101 अफराद जाँ भक हुए हैं, जबकि मुल्क भर में एक दिन में रिकॉर्ड 26,573 अफराद के टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासिर अफराद की तादाद 1,19,536 तक पहुँच गई है और वायरस से जाँ भक होने वालों की तादाद 2,356 हो गई है, जबकि 38,391 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कुल मुतासिर अफराद की तादाद 6,236, पंजाब में 45,463, सिंध में 43,390, खैबर पख्तूनख्वा 15,206, बलूचिस्तान 7,335, गिलगित बल्तिस्तान में 1,018 और आजाद कश्मीर में 488 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज को मयारी तालीम के फरोग के लिए तहकीक और जिद्दत पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। वाइस चांसलर बल्दिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान की तरफ से वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग के मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि कोरोना वायरस से हर जगह तालीमी शोबा मुतासिर हुआ है। उन्होंने तालिब इल्मों के तालीमी नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन तालीम की फराहमी पर जोर दिया। वाइस चांसलर ने तालीम के फरोग के लिए यूनिवर्सिटी के इकदाम को उजागर किया। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वर्चुअल इजलास में 1967 में रियासत फलस्तीन के कब्जे में लिए जाने वाले हिस्सों को इसराइल में जम करने की इसराइली धमकियों पर गौर किया गया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने की। वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी से गुरेज करे और किसी भी फलस्तीनी मकबूजा हिस्से को जम करके यकतरफा इक़दाम से बाज रहे। फलस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इयादा करते हुए खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन के क़याम के मुतालबे को दोहराया। वज़ीर ख़ारिजा ने जम्मू कश्मीर के अवाम पर भारतीय मज़ालिम का भी जिक्र किया और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों, आलमी कानून और अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक फलस्तीन और कश्मीर के दरीना तनाज़ात के हल में फ़ाल किरदार अदा करे। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने ईवान बाला में कहा है कि कराची तैयारा हादसे की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात की जाए और अबूरी रिपोर्ट दोनों ईवानों में पेश की जाएगी। सेनेट इजलास की तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तवज्जो नोटिस और तहरीक अल्तवा पर ऐवान को बताया कि माजी में हादसात की रिपोर्ट कभी बर वक्त मंजर आम पर नहीं लाई गई, लेकिन कराची त्यारा हादसा की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करके 22 जून को रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। तहरीक और तवज्जो नोटिस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक, मियां रजा रबानी, शारी रहमान और जावेद अब्बासी ने मुतालबा किया कि हादसे की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए ताकि लवाहिकीन और अवाम मुतमिन हो सकें। वक्फा सवालात में मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ज़रताज गुल ने बताया कि कोरोना वबा की वजह से हालिया सर्वे में 6% आलूदा अखराज में कमी आई है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर अली मोहम्मद खान ने कहा कि सियाहत सूबाई मामला है, जबकि वफाकी हुकूमत का भी सियाहत में मरकजी किरदार होना चाहिए। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कोहदा बाबर के तवज्जो नोटिस पर कहा कि 2019 में 80,000 ज़ायरीन ईरान गए, जहां पाकिस्तानी कौंसलेट ने सहूलियात फराहम की। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की जानिब से सिगरेट का मामला उठाने पर सिगरेट की स्मगलिंग और एक्साइज ड्यूटी कम होने का मामला खजाना कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। मुस्तफा नवाज खोखर, वलीद इकबाल, सतारा यास, सेंटर फिदा मोहम्मद, नसीबुल्ला बाजई, मुश्ताक अहमद, मीर कबीर, मियां मोहम्मद अतीक शेख और दूसरे अरकान ने भी अवामी अहमियत के नुकात उठाए। सेनेट का इजलास जुमे की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक हादसे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में सूबेदार अजीज और लांस नायक मुश्ताक शामिल हैं। हमला सिक्योरिटी दस्तों के मामूल की गश्त के दौरान किया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 74,53,000 से तजावुज कर गई है। 4,19,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 37 लाख से 49,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 20,66,000 से ज्यादा है, जबकि 1,15,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। भारत में 2,87,000 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हैं। रियासत महाराष्ट्र में 85,975 से ज्यादा मुतासरीन हैं। भारत में 8,106 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लातीनी अमरीकी मुल्क ब्राजील में हलाकतों की तादाद 40,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 7,75,000 से तजावुज कर गई है। ब्राजील के बाद मैक्सिको में भी वायरस तेजी से फैल रहा है, जहां मुतासर अफराद की तादाद 1,24,000 से तजावुज कर गई है। मैक्सिको में हलाक अफराद की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है।
برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ چیئرمین NDMA نے برطانوی ہائی کمشنر کو بتایا کہ پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر آئسولیشن بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی طلب بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ کووڈ کے مریضوں کے لیے آکسیجن والے بیڈز اور بائی پپ وینٹیلیٹر کے حصول میں معاونت فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے ٹڈی دل اسپرے کے لیے مائکرون اسپیئرز کی مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانوی حکومت پاکستان کو مشکل کی اس گھڑی میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ NDMA نے اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام صوبوں کو مزید 90 پورٹیبل وینٹیلیٹرز فراہم کر دیے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کو 25-25، خیبر پختونخوا کو 15 اور بلوچستان کو 10 پورٹیبل وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد کے اسپتالوں کے لیے 5-5 پورٹیبل وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان کو پہلے ہی مختلف اقسام کے وینٹیلیٹرز کے ساتھ 5 پورٹیبل وینٹیلیٹرز دے دیے گئے ہیں۔ پورٹیبل وینٹیلیٹر ایمبولینس میں نصب کیے جا سکتے ہیں۔ NDMA نے پلازما عطیہ کرنے والوں کے لیے ہیلپ لائن 0304-111-0161 کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ ہیلپ لائن 24 گھنٹے کام کرے گی۔ ڈونرز کا نام اور ذاتی معلومات صیغہ راست میں رکھی جائیں گی۔ اور ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نے کووڈ-19 کورونا صورتحال میں اپنے ملازمین کے لیے محفوظ ماحول اور طبی معاونت فراہم کرنے کے حوالے سے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ MD PTV عامر منظور نے کہا ہے کہ ادارے کے ملازمین کی حفاظت PTV انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ موجودہ صورتحال میں ملازمین کے لیے محفوظ اور صحت مند ماحول مہیا کیا گیا ہے۔ MD PTV نے کہا کہ وہ ملازمین جن میں وائرس کی علامات پائی جاتی ہوں ان کو کورونا ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تمام مثبت آنے والے کیسز کی PTV انتظامیہ تمام تر ذمہ داری کے ساتھ نگہداشت کر رہی ہے۔ PTV انتظامیہ نے پاکستان کے نقشے سے متعلق انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر فوری عمل درآمد کیا ہے۔ انتظامیہ نے کمیٹی کی سفارش پر 2 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے۔ پاکستان کا غلط نقشہ 6 جون کو PTV نیوز پر دکھایا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران بھارتی فوج نے ضلع شوپیاں میں مزید 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا اور اتوار کے روز سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ KMS کے مطابق بھارتی فوج نے نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوج نے علاقے کے تمام راستے سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی۔ ضلع شوپیاں میں اتوار کے روز سے یہ تیسرا پرتشدد آپریشن تھا۔ علاقے میں مظاہرین پر تشدد سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج نے کئی مکانوں کو تباہ کر دیا۔ ضلع شوپیاں میں انٹرنیٹ سروسز بھی معطل ہیں۔ حریت رہنماؤں بلال احمد صدیقی، فاروق احمد توحیدی، عمر عادل ڈار اور تحریک وحدت اسلامی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج کے ہاتھوں قتل و غارت کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں صرف 3 دن میں 14 نوجوانوں کی شہادت بھارت کی طرف سے نسل کشی کی بدترین مظاہرہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے آزاد کشمیر شاخ کے رہنماؤں اعجاز رحمانی اور عبد المجید میر نے اسلام آباد میں اپنے بیانات میں شہداء شوپیاں کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ ناظرین، اقلیتوں کے خلاف بھارت کا مکرو چہرہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہے۔ مسلمان ہوں، سکھ یا دیگر اقلیتیں، مودی سرکار نے ہمیشہ طاقت کے زور پر ان کے حقوق غصب کیے اور بدترین امتیازی سلوک کیا۔ بھارت میں آپریشن بلو اسٹار کی 36ویں برسی پر مودی سرکار سے تنگ آ کر سکھوں نے ایک بار پھر خالصتان کے نام سے الگ ریاست کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے شمالی شہر امرتسر میں جون 1984 میں سکھوں کو گولڈن ٹیمپل سے نکالنے کے لیے فوجی آپریشن بلو اسٹار کیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں سکھوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے آپریشن بلو اسٹار کو 36 برس مکمل ہونے پر بھارت سمیت دنیا بھر میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ نئی دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکھ رہنما گیان پرپیت سنگھ نے ایک بار پھر خالصتان کے نام سے الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کے سکھ خالصتان کو ایک الگ ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔
मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 1123 टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़श्ता 24 घंटे में 3,26,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया, जबकि 10,000 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तलफ करने वाली दवाओं का स्प्रे किया गया। अब तक पूरे मुल्क में 5,66,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का कहना है कि इस वक्त मुल्क के 51 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 10, पंजाब के 2 और सिंध के 6 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। चीन के मारूफ रोज़नामे चाइना डेली ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी पर काम तेजी के साथ जारी है। चीनी जरीदे में छपने वाली खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के बायस सीपैक पर पेशरफ्त मुतासिर नहीं हुई। कासिम पोर्ट पावर प्लांट के बिजनेस मैनेजर फ्यूल डिपार्टमेंट फजल रहीम ने हमें तफसीलात से आगाह किया। यहाँ पे जनवरी से ही हमारे पावर प्लांट के ऊपर हिफाजती इक़दाम जो थे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मकसद था वो एक पावर प्लांट की जो ऑपरेशन है उसको भी हमने स्मूथ रखना था, और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सेफ्टी है उसको सबसे ज्यादा हम लोगों ने इम्पोर्टेंस दी। तो उस हवाले से जो शुरू से ही हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने पावर प्लांट पे लॉकडाउन रखा था। फ्रीक्वेंट मूवमेंट जो पहले हो रही थी उसको हम लोगों ने कम कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मास्क वगैरह प्रॉपरली यूज करना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जो थे वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किए थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सदारत में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू और कोरोना वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे मौसिमुद्दीन। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबे के वसाइल में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा के बायस गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं, मुआशी सरगर्मियां तेज होने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन तरजीह है और बजट में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि इस मूजी मर्ज से निपटने के लिए एक जामिया पॉलिसी बनाने की अशद जरूरत है। ये बात पास की थी कि मुश्किल वक्त आने वाला है, अब मुश्किल वक्त आ गया है। पाकिस्तान का नंबर जो है दुनिया में 15वां नंबर है और एक्टिव केसेस के लिहाज से हम इस वक्त 6ठे नंबर पे हैं, जो कि बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक सूरत हाल है। और हमारा मईशत का भी नुकसान होगा। जितना लंबा कोरोना क्राइसिस बढ़ेगा मईशत तो फिर भी तबाह होनी है, उसको नुकसान होना है और इससे इंसानी जानें जो हैं वो भी ज़ाय होंगी। मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम पर बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट के 15 रुकनी वफ्द ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म-ओ-जबर पर आवाज उठाई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तरबियत याफ्ता हेल्थ वर्कर्स की है। उन्होंने कहा कि यह अफवाह गलत है कि कोरोना सबको होगा, एहतियात के जरिए इस वबा से बचा जा सकता है। इस मौके पर डॉक्टर तारिक शमसी ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोगों की जान बचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीज आगे आकर प्लाज्मा दिया करें। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सुबह सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत कोशां है। NCOC की जानिब से सूबा सिंध के लिए 52 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती लिबास भी फराहम किए गए हैं। तफसील जानिए ज़ीशान अहमद से। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि सिंध हुकूमत वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती लिबास, मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का अतिया किया। हमें इनके साथ चलने के लिए और इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें कम से कम इनको इक्विपमेंट पूरा करके देना है, तो हमने कोशिश की है। हमने ये जिनको सिविल अस्पताल कराची को 1500 के करीब PP सूट्स हैं, इसमें हमारे पास मास्क हमने दिए हैं, तकरीबन 6000 इनको सर्जिकल मास्क दिए हैं हमने, कोई हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह, और जो भी ज़रूरत डॉक्टर्स को नर्सेज को पड़ेगी इंशाअल्लाह जिस तरह भी मुमकिन होगा, जैसे इमरान खान साहब ने कमिट किया है कि वो अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स के साथ खड़े होंगे, हम उनके सिपाही की तरह अपने इन सिपाहियों के साथ खड़े। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से मुल्क के दीगर सूबों की तरह सिंध में कराची और सक्खर के मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 52 वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी आलात
फराहम किए गए। ये तिब्बी आलात कोरोना मुतासरीन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए माविन साबित होंगे। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। हमारे डॉक्टर्स को हेल्प आउट करेगा, हमारे बीआरई के मरीजों के लिए हेल्प आउट करेगा। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं नुसरत सहर अब्बासी, हसनैन मिर्जा, शहरियार महर समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत ने अमली तौर पर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। नुसरत सहर अब्बासी का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से कोई पॉलिसी वजह नहीं की है। हसनैन मिर्जा ने कहा कि हम सिंध के आवाम के साथ खड़े हैं और हमें सियासत बराए सियासत नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत का महकमा सिंध हुकूमत के पास है, ताहम सिंध में सहूलियात के फुकदान के बायस हर तबका परेशान है। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस मिलना चाहिए। इसमें अगर कोरोना से जंग लड़ते हुए अगर कोई शहीद हो जाए, शहीद कोटा उनको मिलना चाहिए। हलीम आदिल शेख ने सिंध हेल्थ ग्रैंड अलायंस से भी अपील की है कि इस हंगामी हालात में ओपीडी का बाइकआउट न किया जाए। रुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के पेश नजर एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में तमाम अज़ला की इंतजामिया मुतहर्रिक है। तफसीलात से आगाह करेंगे साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारी करदा एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। अब तक 1,66,387 कार्रवाइयां की गई हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 3,219 यूनिट्स को सील किया गया है, जबकि एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर 41,563 यूनिट्स और कारोबारों को वार्निंग जारी किए गए हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर मरकज के मुलाजिमीन के लिए कोरोना के मुफ्त टेस्ट का इंतजाम किया गया। इस मौके पर 50 से ज्यादा मुलाजिमीन के नमूने लिए गए। पीटीवी की इंतजामिया ने टेस्ट सहूलत की फराहमी पर सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम जगड़ा का शुक्रिया अदा किया। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात अजमल वज़ीर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर पर अमल करना नागजीर है। उन्होंने कहा कि कोरोना का मुकाबला भी करना है और मईशियत का पहिया भी चलाना है। अजमल वज़ीर ने कहा कि सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस ज़िम्न में तमाम दस्तयाब वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से हुक्मनामे के इजरा के बाद पाकिस्तान और ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में एसओपीज के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है। मुसाफिर बसों में समाजी फासला बरकरार रखा गया है। तफसील सलीम बलोच से। हुकूमत बलूचिस्तान के हुक्मनामे के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एसओपीज के तहत चलने की इजाज़त मिलने के बाद पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान से कोयटा रूट पर चलने वाली बस सर्विसेज 3 महीने के बाद बहाल हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट बसों में जरासीम कुश स्प्रे करने के बाद लोगों को समाजी फासलों के मुताबिक एक सीट पर बिठाया जा रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मशकूर जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलकर हमारे देरीना ख्वाहिश पूरी की और हमें बेरोजगारी से बचा लिया। हम एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुसाफिरों को जरूरी दस्तावेजात और डेटा के मुताबिक सफर की इजाजत है। मुसाफिर बसों के डबल सीट पर हुकूमती अहकामात के मुताबिक एक मुसाफिर को बिठाया जा रहा है और उन्हें दौरान सफर मास्क भी फराहम किया जा रहा है। सलीम बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, तफ्तान। तहसील मुल्तान में नो मास्क नो सर्विस मुहिम के तहत तिजारती मराकज और बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं, ये बताएंगे शिराज दुरानी। कोरोना ज़दा माहौल में एहतियाती तदाबीर के साथ मामूलाते जिंदगी बरकरार रखना एक समाजी हकीकत बन चुका है। मुल्तान के शहरी इस हकीकत को तस्लीम करते हुए हुकूमती रहनुमाई के तहत समाजी और मुआशी मामलात में फासला बरकरार रखने, मास्क और ग्लव्स के इस्तेमाल और खुद को सैनिटाइज करने को अपनी आदत का हिस्सा बना रहे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों के तहत मुल्तान में भी ताजिर हजरात हफ्ते के 5 दिन कारोबारी मामलात में नो मास्क नो सर्विस का अमल यकीनी बनाने में मसरूफ हैं। तमाम ताजरान से गुजारिश करता हूं, जो 5 दिन कारोबार खोला जाए उसको एसओपीज के साथ अमल किया जाए। जितने भी हमारे सेल्समैन हैं सब ने मास्क लगाया हुआ है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी है। जो कस्टमर भी हमारी दुकान में आता है उसको हम जो है पहले सैनिटाइज करवाते हैं और फिर उसको इंशाल्लाह आगे कपड़ा देंगे। बैंक्स हों या शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज या छोटी दुकानें, हत्ता के हुकूमती और निजी इदारों में अवामी डीलिंग या खरीदो फरोख्त के मुकर्ररा औकात में हुकूमती एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है।
स्टेट बैंक के एसओपी के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि हम कस्टमर को इंटरटेन कर सकें। सैनिटाइजर एंट्री पे यूज़ कर रहे हैं और मास्क के बगैर हम एंट्री नहीं कर रहे ताकि हम अपने कस्टमर को तमाम तरह फाइनेंशियल सहूलियत दे सकें। ताजिर हजरात ने सूरत हाल की हसासियत के पेश नज़र अवाम में शऊर की आगाही के लिए मुनासिब जगहों पर नो मास्क नो सर्विस के पैनाफ्लेक्सेस आवेज़ा कर रखे हैं। ज़िले इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले और मुतलका इदारे सूरत हाल को मजीद मुश्किल बनाने के तदारुक के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं। कोरोना जैसी मुहलिक वबा से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। हुकूमती SOPs पर अमल करके हम अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। जिला हुंजा में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन में सख्ती और बगैर मास्क के जिले में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में वक्फे के दौरान फेस मास्क की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। हुंजा में इस वक्त 71 एक्टिव केसेस हैं। सूबाई हुकूमत ने जिला हुंजा में 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है। कराची में मुनहदिम होने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है और मलबे से 22 लाशें निकाली जा चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। कराची के इलाके लियारी में लियाकत कॉलोनी खड्डा मार्केट में इतवार को मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे से मजीद 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद हादसे में जहां बहक अफराद की तादाद 22 हो गई है, जबकि 5 जख्मियों को सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतासिरा जगह से मलबा हटाने का काम जारी है, तहम इमदादी टीमों की जानिब से अंदर किसी भी इंसान की मौजूदगी के होने की वजह से तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। इमदादी कार्रवाई में बल्दिया उज़्मा कराची, पाक फौज, सिंध रेंजर्स, पुलिस और दूसरे इदारे शामिल हैं। इमारत के मलबे को हटाने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई है, तहम तंग गलियों के बायस मलबा उठाने के काम में मुश्किलात दरपेश हैं। दूसरी जानिब अवामी हलकों की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुजरिमाना बेहिसी और नाकिस कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठाए जाने के साथ साथ वजीर आला सिंध से पैसे के एवज गैर कानूनी तामीरात करने वाले अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। 22 मई को कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के इंजन और विंग को मुतासरा घर की छत से उठा लिया गया है। तफसील जिशान अहमद से। कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का मलबा उठाने के बाद इंजन उठाने का काम एक मुश्किल मरहला था। PIA, आर्मी इंजीनियर और पाक फजाइये के दस्तों की मौजूदगी में जिना गार्डन में मुतासरा मकाम की छत से वजनी क्रेनों की मदद से इंजन और पर को तकनीकी माहिरीन की मावनत से निकाल लिया गया है। जहाज के इंजन को निकालने के लिए PIA ने KPT और नेवल डॉकयार्ड से वजनी क्रेनें मंगवाई। जहाज का 17 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा पर घर के अंदर धंसा हुआ था और इसको निकालने से घर के मुनहदम होने का खदशा था। तजुर्बाकार और तकनीकी तौर पर माहिर टीमों ने अहसन तरीके से इस काम को सरअंजाम दिया। जहाज के तमाम पुर्जों को कराची एयरपोर्ट पर एक महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया है, जहां तहकीकाती टीमें इनका जायजा लेंगी। सिंध रेंजर्स ने पूरे इलाके को सील करके मलबे की मुंतकली के अमल को महफूज बनाया। CEO PIA अरशद मलिक ने तमाम इदारों बिलखुसूस वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी और नेवल डॉकयार्ड के सरबराह एडमिरल नासिर हुसैन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। इलाका मकीनों ने भी महफूज तरीके से तैयारे का मलबा उठाने के लिए PIA, KPT और अफवाज पाकिस्तान की काविशों को सराहा। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। सबसे पहले आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई सिंध और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे में इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। फजा में नमी का तनासुब 48% रहेगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री रहने की तवक्को है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद 48, सिब्बी 47 और पिंड ईदन में 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर महकमा मौसमियात ने रवां बरस मानसून के दौरान मुल्क भर में मजमूई तौर पर 10% ज्यादा बारिशों की पेशगोई की है, जबकि सिंध में 20% ज्यादा बारिशें होंगी। मामूल से ज्यादा बारिशों के बायस जमीन नमदार होगी, जिससे टिड्डी दल की अफजाइश बढ़ने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के 53 अजला टिड्डी दल हमले की जद में है, जिसमें से बलूचिस्तान के 33,
سندھ کے 8, خیبر پختونخوا کے 10 اور پنجاب کے 2 اضلاع شامل ہیں۔ ادھر بہار کے موسم میں افزائش پانے والے ٹڈی کے بڑے لشکر کی جنوب مغربی پاکستان سے بھارتی راجستھان کی طرف قبل از وقت ہجرت کی توقع ہے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کورونا وائرس کے پیش نظر کھلاڑیوں کی صحت اور کھیل کو محفوظ بنانے کے لیے قوانین میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ آئی سی سی کی چیف ایگزیکٹو کمیٹی نے انیل کمبلے کی سربراہی میں بننے والی کرکٹ کمیٹی کی تیار کردہ سفارشات کا بغور جائزہ لینے کے بعد تبدیلیوں کی منظوری دی ہے۔ کرکٹ کے نگران عالمی ادارے نے احتیاطی تدابیر کے تحت گیند کو چمکانے کے لیے تھوک کے استعمال پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی کھلاڑی ایسا کرتے ہوئے پایا گیا تو ٹیم کو وارننگ دی جائے گی۔ اگر کوئی ٹیم ایک اننگز میں 2 وارننگز پر بھی باز نہیں آتی تو پھر 5 رنز کی پینلٹی عائد ہوگی، جبکہ امپائرز کھیل دوبارہ شروع کرنے سے قبل گیند کو صاف کرنے کی ہدایت بھی کریں گے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہی نیوٹرل امپائرز کی پابندی وقتی طور پر ختم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مقامی آفیشلز کا تقرر کیا جا سکے گا۔ آئی سی سی نے مقامی امپائرز کے کم تجربے کے پیش نظر ٹیموں کو ہر اننگز میں ایک اضافی ریویو بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا کی علامات ظاہر ہونے پر متبادل کھلاڑیوں کو لینے کی اجازت ہوگی۔ آسٹریلوی حکومت مقررہ شیڈیول پر ہی T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کروانے کے لیے بہت پر امید ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر کھیل رچرڈ کولبیک نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے آئی سی سی اور اسٹیٹ حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ آسٹریلیا کی تمام ریاستیں کھیلوں کی محفوظ واپسی کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہیں۔ رچرڈ کولبیک نے کہا کہ کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی صحت کے حوالے سے تمام تر ضروری انتظامات کیے جائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ T20 ورلڈ کپ سے عالمی ناظرین بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوں گے۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں ورلڈ T20 کپ کے انعقاد کے حوالے سے اہم فیصلہ آج آئی سی سی بورڈ کی ٹیلی کانفرنس میں متوقع ہے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان بیس بال فیڈریشن کے حوالے سے، جس کی انڈر 18 ایشین بیس بال چیمپئن شپ میں شرکت کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ کھلاڑیوں کی ٹورنامنٹ میں شرکت اور ان کی صحت کو ترجیح دینے کی حکمت عملی تیار کی گئی۔ سید فخر علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کوچ طارق ندیم، عامر امداد، عمیر بھٹی، ٹرینر محمود احمد نے شرکت کی۔ فیصلہ کیا گیا کہ کھلاڑیوں کے ساتھ آن لائن رابطوں کے ذریعے گھروں میں پریکٹس کرائی جائے گی۔ ملک میں کورونا کی صورتحال بہتر ہونے پر فیڈریشن اگست میں ٹیم کا تربیتی کیمپ لگائے گی۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے پہلے آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ میں 3 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ کورونا کے باعث محدود سرگرمیوں کی وجہ سے منعقد ہونے والا آن لائن ٹورنامنٹ 15 جون کو شروع ہوگا، جو 7 روز تک جاری رہے گا۔ ملکی کھلاڑیوں کے علاوہ ایشین باکسنگ کنفیڈریشن نے بھی پاکستان کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کا سفر دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کے لیے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم خصوصی طیارے سے مانچسٹر پہنچ گئی۔ مہمان کھلاڑیوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام حکومتی گائیڈ لائنز کو یقینی بنا کر کھلاڑیوں کو ہوٹل پہنچایا گیا، جہاں مہمان ٹیم قرنطینہ کی مدت سمیت 3 ہفتے قیام کرے گی۔ کیریبین کپتان جیسن ہولڈر نے 7 ہفتوں کے ٹور کو کرکٹ کے لیے بڑا قدم قرار دے دیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 8 جولائی سے ہوگا۔ 9 عمر ڈرائیور اولیور سولبرگ نے ریلی سویڈن لاک ڈاؤن جیت لی ہے۔ سویڈن کے علاقے توشبی میں ہونے والے ریس کے فائنل میں 18 سالہ اولیور سولبرگ نے اپنے کزن پونسس کو مات دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔
रेस 2.5 किलोमीटर के स्प्रिंट स्पीड स्टेज पर मुश्तमिल थी। रेस के दौरान ओलिवर सोलबर्ग की मां परनीला सोलबर्ग इनकी को ड्राइवर थी। सोलबर्ग ने फाइनल के दोनों मराहिल में पोंटिस को हराया। रेस बंद दरवाजों के पीछे शायकीन के बगैर कराई गई। रैली स्वीडन लॉकडाउन मार्च में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद स्वीडन में होने वाला खेलों का सबसे बड़ा इवेंट है। Heavy on the brakes. Here we go. Tiedemann's time's up at 3:26.1. What can he do? We're 24, 25, 20. We've done it. He's done it. Oliver Solberg has completed it and won it by 1.1 seconds over the average of 2 stages. What a run. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा की टीमें भी मैदान में आने के लिए बेताब हैं। कोरोना वायरस के बायस मार्च से मुअत्तल लीग आज से बहाल हो रही है। पहला मैच स्वेला और रियल बीटिस के दरमियान खेला जा रहा है। खिलाड़ी लीग की बहाली के लिए पुरजोश हैं, ताहम खाली स्टेडियम्स में खेलने को मुख्तलिफ तजर्बा करार दे रही हैं। पॉइंट्स टेबल पर बार्सिलोना 58 पॉइंट्स के साथ पहले और रियल मैड्रिड की टीम 56 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया की नामवर टेनिस स्टार और आलमी नंबर 1 एशले बार्टी ने कहा है कि यूएस ओपन के इनेकाद के लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। एशले बार्टी ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा हालात में टेनिस के खेल को भी दोबारा जल्द शुरू करने के बारे में बहुत गौर व खोज करना होगा। उन्होंने कहा कि अगस्त में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शिरकत से कबल इन्हें मजीद मालूमात दरकार हैं। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और समीना राना को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये एक ख्वाब है, इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी और रांझे की बंसी में लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल है और हंसमुख है। यारों के सुख इनके सुख है, यारों के दुख इनके दुख है। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती। दस्तरखान पे रंग बरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख अलाव। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की दरगाहें हैं। दरगाहों पर मेले ठेले, ढोल की थाप, सुरों के रेले। सब्ज दुआबे, बेले जंगल, सजे हुए यारों के दंगल। दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुशरंग कतारें, दिखलाती हैं टीलों पर भी रेत बहारें। चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं,
दूर तरंजन में मुटियारे टप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है। इस धरती के लोगों में दहकान बहुत है। खेत तो हर दहकान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत। हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। सनती मालिकान मुतवज्जे हों। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें। थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं। मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए जराए आमद और रफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। हमारे पास आपके लिए इंतहाई अहम पैगाम है, खास तौर पर उन सब के लिए जो कोरोना से नबद आजमा मुमालिक में मुकीम है। कोरोना की वबा बहुत से मुल्कों में तेजी से फैल रही है, लेकिन चेक रिपब्लिक यूरोप के उन चंद मुल्कों में है जिन्होंने इस वायरस के फैलाव को बड़ी हद तक काबू किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने क्या मुख्तलिफ किया ताकि आप भी वही कर सकें जो हमने किया। चेक रिपब्लिक में समाजी फासलों के लिए घर में रहने के असूल को अपनाया गया, लेकिन ये तो बाकी सब ने भी किया। हमने हाइजीन के खुसूसी तरीक़ाकार पर अमल किया और ये भी बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे और बाकी सब में असल फर्क ये है कि कोई भी घर से बाहर चेहरे का मास्क पहने बगैर नहीं जा सकता और ये सब के लिए है। हमें पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बताएंगे कि मास्क तो बस कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये तहकीक ने साबित किया है कि घर में बने हुए मास्क भी बड़ी हद तक आपको महफूज रख सकते हैं। और अहम ये है कि किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ आजकल जरूरी है। सबसे अहम बात ये है कि मास्क आपसे औरों तक इस वायरस को रोकने में मुआविन होता है, चाहे आप छींक रहे हों, खांस रहे हों या सिर्फ सांस ही ले रहे हों। बहुत से अफराद इस वक्त भी कोरोना वायरस की मुंतकली का जरिया होते हैं, जब अभी इनमें कोरोना की अलामात भी जाहिर नहीं होती। इस तरह जब 2 लोग मास्क पहनकर एक दूसरे से बात करते हैं तो हम एक दूसरे का ही तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं और दोनों ही महफूज होते हैं। तहकीक के मुताबिक आबादी के लिहाज से मास्क का इस्तेमाल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकता है। जितने ज्यादा अफराद मास्क का इस्तेमाल करेंगे, इतना ही वायरस का फैलाव कम होगा। हमारे तजर्बात के मुताबिक एक सादा घर में बना हुआ मास्क 100% तक कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकता है। कुछ दिन कबल की बात है, लोग इनकी हंसी उड़ाते थे जो मास्क पहनकर घूम रहे थे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मास्क के मस्बत इस्तेमाल की अहमियत को जानते हैं और इन्होंने समाजी मीडिया पर इसको उजागर करना शुरू कर दिया था। ये पैगाम तेजी से आगे बढ़ा और आर्टिस्ट और सहाफियों समेत अहम शख्सियात ने इसको आगे बढ़ाया। हम ये भी जानते हैं कि चेहरे के मास्क स्टोर्स पर कम दस्तयाब हैं।
लेकिन एक नाकाबिले यकीन बात ये हुई कि हमारे यहाँ लोगों ने घरों में चेहरे के मास्क बनाकर मुफ्त में तकसीम करना शुरू कर दिए। बहुत से इदारों और कंपनियों ने अपने ऑफिस को मास्क बनाने के लिए वक्फ कर दिया और हजारों अफराद ने घरों में मास्क सीना शुरू कर दिए। और इस तरह हम जानते हैं कि चेहरे के मास्क ने कोरोना से लड़ने में बड़ा काम किया। साइंसदान भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। हमें ये भी मालूम हुआ कि किसी भी मुल्क में 3 दिन के अंदर 1 करोड़ लोगों के लिए मास्क घरों में बैठकर सिए जा सकते हैं और इस तरह कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। आप भी इस पैगाम को आगे पहुंचाएं और इंसानियत के लिए आसानी पैदा करें। चेहरे पर मास्क पहनकर अपनी तस्वीर बनाएं और मास्क फॉर ऑल के हैशटैग के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इसी तरह इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। याद रखें कि मैं आपको और आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। क्या एंटीबायोटिक से कोरोना का इलाज मुमकिन है? जी नहीं, एंटीबायोटिक अद्वियात वायरस के खिलाफ मौसर नहीं होती। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम आती हैं। चूंकि कोरोना भी वायरस है, इसलिए एंटीबायोटिक अद्वियात इस पर असर नहीं करती। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।